अक्सर हम पैसों की चमक धमक को ही असली अमीरी समझने की गलती कर बैठते हैं। लेकिन बड़ी तनख्वाह और आलीशान दफ्तर हमेशा सुकून की गारंटी नहीं देते। वक्त बीतने के साथ ही समझ आता है कि किसने अपनी दौलत को सही से संवारा है। सच्ची शांति वही है जब आप अपने घर में चैन की नींद सो सकें और खुश रहें। सही निवेश और अनुशासन ही आपके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित और उज्जवल बनाता है। दिखावे की दौड़ में भागते हुए इंसान अक्सर कर्ज के बोझ तले दब जाता है। महंगी कारें और क्रेडिट कार्ड का जाल रातों की नींद छीन लेता है। आज़ादी वही है जहां बच्चों की आंखों में डर नहीं बल्कि सुनहरे सपने हों। अब खुद से पूछिए कि असल में अमीर कौन है, वह जो कमाता है या जो बचाता है। सच्ची दौलत बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि जीवन की आज़ादी और सुकून में है। Welcome to Cash Rich Surajit. Hi, Surajit this side. Our mission is simple to help every Indian family become financially confident through knowledge, discipline, and smart investing. If you are looking for shortcuts to become rich overnight, then, my dear friends, this is probably not the right platform for you. But if you want to understand money, build wealth potentially, and secure your family's future, then you are definitely in the right place. The biggest myth about money. Most of the people believe one thing: if I earn more money, all my financial problems will disappear. But unfortunately, that is not the truth. A higher salary gives you more opportunities, but it does not automatically give you financial freedom. In fact, thousands of highly paid professionals like doctors, engineers, software developers, business owners earn excellent incomes, yet struggle financially. Why? Because income alone does not create wealth. It is your financial behavior that does the miracle. The hidden enemy. Let me introduce you to a silent enemy. Actually, it is a silent killer. That is lifestyle inflation. Supposedly, you receive a salary hike. Immediately, you buy a bigger phone, a more expensive car, a larger house, more subscriptions, more dining out, more shopping. The income rises, but expenses rise even faster. Eventually, you feel richer without actually becoming wealthier. Now, let us come to the financial literacy part, which schools don't teach at a school level. Probably certain colleges have started teaching this financial literacy part. Anyway, that is a separate issue altogether. Financial literacy simply means, don't take me wrong, because so many of us are who are our viewers, they might be mm, highly educated and they might feel hard. But with due respect to all of them, I'd like to say financial literacy is something different which is not being taught at the school level. So we need to learn it properly, and which simply means understanding the working pattern of money. That is how money works. It is about knowing how to earn wisely, how to save consistently, how to invest intelligently, and how to avoid unnecessary debts, how to protect your family, and how to let your money grow through the power of compounding. These are not just financial skills, they are life skills. Can anybody tell me why schools don't teach this? Think back to school days. We studied mathematics, science, geography, history, languages, but how many of us were taught how to file taxes, how inflation affects our savings, why investing matters, or what is the basic difference between savings and investment, how to prepare for retirement, how to prepare for the emergency situations? For most people, the answer is none. And that is why financial education often begins only after costly mistakes. Now, let us discuss
Let us understand about 5 simple rules for a brighter financial future. Rule number 1, that is spend less than you earn. भाई जितना आमदनी है उससे कम खर्च कीजिए. As simple as that. Golden rule. These 5 are the golden rules. Spend less than you earn. Save before you spend. अभी स्पेशली इंडिया में भाई आमदनी अटननी खर्चा रुपया. ठीक, ये तो एक कहावत है ही. और पॉइंट नंबर 2, सेव बिफोर यू स्पेंड, ये तो सोच ही नहीं सकते हैं. ये तो सोच ही नहीं सकते हैं. 100% अर्निंग है, 120 रुपए खर्चा है. कितना क्रेडिट कार्ड्स, कितना ईएमआई भरते भरते जिंदगी थक चुका है बंदा. तो सेव बिफोर यू स्पेंड. अभी थ्योरी क्या है, कॉमन थ्योरी क्या है? 100% रोजगार है, 80 रुपए घर खर्चा है, सब खर्चा वर्चा करके 20 रुपए बचा, उसमें से भी कुछ तो एंटरटेनमेंट पर्पस खर्च कर दिए. उसके बाद जो बचा, कुछ बचा तो सेव किया, कुछ नहीं बचा तो बोलेगा बचता ही नहीं है, सेव कहां से करें. आइडियली द कॉन्सेप्ट शुड बी एब्सोल्युटली द ऑपोजिट. आपको आपका जितना रोजगार है, अर्निंग है, उसमें से एक पोर्शन सेव करना ही है. एक कहावत है, सेव मनी फॉर द रेनी डेज. एंड एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेविंग्स गाइडलाइन, you should save at least 30% of your total earning for the rainy days. क्या बोला? You should spend at least 30% of your total earning. 100% रोजगार है तो पहले तो 30 रुपए वहां से हटा दीजिए. रोजगारी नहीं किए तो खर्चा कहां से करेंगे? मेरा तो रोजगारी है 70 रुपीज, तब जाके सेविंग्स हो पाएगा. एंड दैट इज थंब रूल. यहां पे उल्टा चलता है. भाई पहले तो खर्चा कर लो, उसके बाद देखा जाएगा. कुछ बचता है तो सेविंग्स करो, कुछ नहीं बचता है तो वो कहावत तो है, आमदनी अटकनी खर्चा रुपया. इतना मार्केट प्राइस इतना बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है, कहां से सेविंग्स करे? सैलरी इतना कम है, कहां से सेविंग्स करे? भाई जितना है उसमें से पहले 30% हटा दो. माइंडसेट ऐसा तैयार करना है. प्रिपेयर योरसेल्फ with such a mindset that my earning is not rupees 100, my earning is rupees 70. तब जाके आप 30 रुपीज बचा पाओगे. एंड दैट इज द थंब रूल, सेव बिफोर यू स्पेंड. क्यों? क्योंकि एक चीज आप मान के चलिए, अगर आपका ईएमआई है, ईएमआई तो डेट बाय डेट भरना ही है आपको, वहां पे तो कुछ कटौती कर नहीं सकते हैं. तो देखिए, अगर आप सेविंग्स को ईएमआई की तरह सोचते हैं कि भाई इसको भरना ही है, ये मंथली मेरा एक्सपेंस में आता है, नहीं देंगे तो बैंक वाला फोन करके परेशान करेगा, वो अलग लीगल नोटिस भेजेगा, वो अलग घर पे बंदा भेज देगा, उठा के लेके जाएगा पैसा के लिए, घर पे लोग आके तगादा देगा. ऐसे जब सोच पाइएगा तब जाके पहले आप सेव कर पाइएगा. सेव स्ट्रेट अवे 30% बिफोर यू स्पेंड. अर्निंग आ गया, सैलरी चेक आ गया, 30% वहां से घटा दीजिए, सेविंग्स फंड में डाल दीजिए. उसके बाद 70 रुपए रह गया, उसको खर्चा कीजिए. दैट इज द ओनली way, and it is a clear cut mindset that you need to build up within yourself. Next, rule number 3, build an emergency fund. Because जिंदगी में कब कहां आ जाए, लाइफ इज एब्सोल्युटली अनप्रेडिक्टेबल. कब कहां कौन सी मोड़ पे क्या घटना, क्या दुर्घटना आ जाता है, क्या इमरजेंसी आ जाता है, क्या कंटिजेंसी सिचुएशन आ जाता है, यू नेवर नो. सो बिल्ड एन इमरजेंसी कॉर्पस. एक इमरजेंसी कॉर्पस आपको बिल्डअप करना ही है, और जिसका पर्पस ही रहेगा कि भाई कुछ इमरजेंसी आएगा तभी जाके. इमरजेंसी बोले तो ऐसा नहीं है कि अचानक प्लान हो गया घूमने जाना है, लोनावेला, दीघा, मंदारमनी, पुरी या यूरोप घूमने जाना है, तो दैट इज ऑल्सो इमरजेंसी. दोस्त ने बोला है, गर्लफ्रेंड ने बोला है, मना कैसे करे? ऐसा मत कीजिए. इमरजेंसी मतलब इमरजेंसी. एंड ऑल दिस शुड बी प्लान. ये घूमने जाना है, ठीक है, ईयरली एक बार घूमने जाना है, दैट शुड बी, उसके लिए एक सेपरेट फंड का इंतजाम कीजिए. घूमने जाना है, शौक है,
शौक भी ऊंची चीज है, तो उसको पूरी करने के लिए एक अलग सा टूर फंड बना लीजिए, बट इमरजेंसी फंड इज फॉर इमरजेंसी क्राइसिस पीरियड ओनली। ठीक है। नेक्स्ट, इन्वेस्ट रेगुलरली। अभी आप बोलिएगा कि अरे 2 नंबर गोल्डन रूल में तो सर आपने बता दिए, सेव बिफोर यू स्पेंड। अरे खर्चा करने से पहले ही तो तनख्वाह आया नहीं, आप 30 रुपए काट के रख दिए सेविंग्स में, अभी फिर से आप बोल रहे हैं इन्वेस्ट रेगुलरली। सर जी, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स बोथ आर डिफरेंट, टू डिफरेंट टूल्स, बोथ आर टू एब्सोल्युटली डिफरेंट टूल। सेविंग मतलब इनकम में से आप जो पैसा बचा के रख रहे हैं, बचत, और इन्वेस्टमेंट मतलब जो कि मल्टीपल कंपाउंडिंग इफेक्ट देगा आपको, और इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स में अंतर है। उसके लिए मैं सेपरेट एक एपिसोड बना दूंगा कि व्हाट इज बेसिक डिफरेंस इन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सेव करके रखते हैं टू इन्वेस्ट दैट पर्टिकुलर सेविंग्स अमाउंट इनटू इन्वेस्टमेंट टूल। देयर आर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट टूल्स इन द मार्केट। हो सकता है शेयर में इन्वेस्ट करें, हो सकता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, हो सकता है और किसी बॉन्ड्स में, किसी डिवेंचर्स में। देयर आर n नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट टूल्स इन द मार्केट व्हिच कैन गिव यू कंपाउंड इफेक्ट। आपने सुना ही तो होगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ठीक है, कंपाउंडिंग इफेक्ट तब जाके मल्टीप्लाई होता है आपका। 1 रुपए 10 में कन्वर्ट होता है, 10 रुपए 100 में कन्वर्ट होता है, वो सेविंग से आता नहीं है, इन्वेस्टमेंट से आता है। ठीक है, तो इन्वेस्ट रेगुलरली। कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर देन टाइमिंग इन द मार्केट। रेगुलर वे में आज के डेट पे फैशन है एसआईपी का। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है क्या? उसमें है क्या? एसआईपी करना क्यों जरूरी है बताएंगे। उसमें है क्या? उसमें एक चीज कॉमन है, रेगुलरिटी। सिस्टमेटिक, हर महीने, हर दिन, रेगुलर इंटरवल पे इन्वेस्टमेंट होता रहता है। मार्केट के उतार चढ़ाव में इन्वेस्टमेंट होता रहता है, कभी कम कभी ज्यादा। अमाउंट इज फिक्स्ड, डेट इज फिक्स्ड। कभी आपको कम भाव में मिल गया, कभी ज्यादा भाव में मिल गया, इट डजंट मैटर। लॉन्ग टर्म में बैलेंसिंग हो जाता है। तो इसीलिए एसआईपी आज के डेट में सो पॉपुलर अ प्रोडक्ट फॉर इन्वेस्टमेंट। अभी यंग जनरेशन से शुरू करके मिड एज सेगमेंट सारे तो एसआईपी के पीछे भाग रहे हैं। रीजन बिहाइंड सबको यह पता है कि भाई उसमें रेगुलरिटी है, कंसिस्टेंसी है, सिस्टमेटिक है, और रेगुलर बेसिस हैसल फ्री है। मार्केट में पैसा जाता रहता है, इन्वेस्टमेंट रेगुलर होता रहता है। तो आपको भी ये गोल्डन रूल फॉलो करना है। अभी आप ये पूछिए मत कौन से फंड में डालें, फंड रिकमेंडेशन का चैनल ये नहीं है। ठीक है, फंड रिकमेंडेशन का चैनल ये नहीं है। हम लोगों का मेन मोटो है, आवर मेन मोटो इज टू बिल्ड फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस। Our main motto is to build the financial confidence amongst our viewers, not more than that. कोई पर्टिकुलर स्टॉक, कोई पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड यहां से आपको बता नहीं पाएंगे, क्योंकि ये प्योरली एक एजुकेशनल चैनल है। और टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, फाइनेंशियल लिटरेसी जब आप में आ जाएगा तो आप लोग कॉन्फिडेंट हो जाओगे, खुद ब खुद आप लोग चूज कर पाओगे कौन सा प्रोडक्ट लेना है, कौन सा फंड में पैसा लगाना है, कौन सा स्कीम बेहतर है, वो आपके ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। पेशेंस। देखिए, बी पेशेंट, ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट। पेशेंस, संयम, ये तो आपको पकड़ के रखना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का पेशेंस जितना आप, वेल्थ इज यूजुअली बिल्ड ओवर ईयर्स नॉट ओवर नाइट। सबसे पहले मैं एक डिस्क्लोजर दे दिया था, एक डिस्क्लेमर डाल दिए थे चैनल के एकदम शुरू में कि भाई ओवरनाइट किसी को पैसा बनाना है, क्विक मनी बनाना है, दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म। प्रोबेबली यू आर एट द रॉन्ग प्लेस। बट अगर इन्वेस्टमेंट को सही मायने में समझना है, कैसे इन्वेस्ट करें, कहां इन्वेस्ट करें, कौन सी प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सी प्रोडक्ट मीडियोकर है, कौन से में पैसा डालना ही नहीं है, और उसके साथ साथ कितना समय चाहिए, क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ये सब में अगर जानकारी चाहिए, अपने आप को एजुकेट करना है, तो ये दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू। ठीक है, तो पेशेंस मार्केट में एक आपके लिए क्या बोलेंगे, ब्रह्मास्त्र है। जितना ज्यादा आप पेशेंस धर पाइएगा, पेशेंस रख पाइएगा, द मोर पेशेंट यू आर द बेटर।
ठीक है, तो पेशेंस एक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये गोल्डन रूल में आपको पेशेंट रखना ही है, और जितना पेशेंटफुली आप मार्केट में इन्वेस्टेड रहोगे फॉर लॉन्गर पीरियड, उतना ज्यादा कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी देखिए ये पांचों जो गोल्डन रूल है, नंबर 1, स्पेंड लेस देन यू वांट, नंबर 2, सेव बिफोर यू स्पेंड, नंबर 3, बिल्ड एन इमरजेंसी फंड, नंबर 4, इन्वेस्ट रेगुलरली, एंड नंबर 5, बी पेशेंट। ये पांचों जो गोल्डन रूल है, दिस प्रिंसिपल्स में साउंड टू मच सिंपल, these principles may sound too much simple, but if applied consistently, they can transform your financial future. If applied consistently, they can transform your financial future. Always remember it. Now, power of starting early. अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि भाई स्टार्टिंग अर्ली का क्या क्षमता है। अब यहां पे देखिए, इमेजिन 2 इन्वेस्टर्स, 2 इन्वेस्टर को आप कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए, वन स्टार्टिंग एट एज ऑफ 25 एंड अनदर वेट्स अंटिल 35। एक महाशय 25 साल में जैसे नौकरी मिला उसको, उन्होंने स्टार्ट कर दिया मंथली 5000 का इन्वेस्टमेंट। अनदर वन, उसको समझ आते आते 35 हो गया, 10 साल बीत गया। अभी देखिए इन इंडियन इकोनॉमी और इंडियन सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में हम लोग 22-23 साल से तो कमाना चालू कर देते थे हम लोगों के जमाने में। एट प्रेजेंट माई एज इज 45, नियरिंग 46। तो वी स्टार्टेड आवर करियर एट, आई स्टार्टेड माई करियर एट 23। बट आज के डेट पे पीपल आर मोर कंसर्न, यंग जनरेशन तो 18, 19, 20 पैसा कमाना चालू, क्योंकि उसको मनी का वैल्यू पता है, कमाने में माहिर है। बट भाई इतना हार्ड अर्न मनी, इतना हार्ड अर्न मनी, इसको सही जगह पे निवेश करने की भी जानकारी होना चाहिए। सही जगह पे निवेश होगा तब जाके ये फल देगा लॉन्ग टर्म में। अभी देखिए, लेट अस सी दिस डिफरेंशिएशन। एक ने तो 25 में स्टार्ट कर दिया मंथली 5000 सेविंग से, इन्वेस्टमेंट से। दूसरा नंबर 2, उसको समझ आते आते 35 हो गया। चलिए, तो अभी 10 साल पीछे, 10 साल पीछे दोनों का एज एक ही है। एक ने 25 साल से इन्वेस्ट करना चालू कर दिया, दूसरों को समझ आते आते 35 हो गया। बट वो मन में सोचा कि भाई चलो 10 साल देर हुआ तो कुछ बात नहीं है, कोई गल नहीं है, चलो 10,000 मंथली से चालू करेंगे। तो बंदा नंबर 1 वो 5000 पर मंथ से चालू किया था और 10 साल पहले चालू कर दिया था। और बंदा नंबर 2 जिसको अकल देर से आया, वो 10 साल बाद चालू किया और उसको उसको ऐसा सूझा कि भाई चलो 10 साल लेट हुआ तो वो 5000 करके सेविंग्स करता था, इन्वेस्ट करता था, मैं 10,000 करके करूंगा। तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग 10,000 एवरी मंथ। और इसको क्या है, क्योंकि ये लेट से चालू किया, इसको समय कम मिला। और क्योंकि 25 साल से जो बंदा इन्वेस्टमेंट करना चालू किया था उसको समय ज्यादा मिल गया, क्योंकि भाई दोनों का ही रिटायरमेंट तो 60-65 ही है। अभी 25 साल से चालू करता है तो 65 होते होते उसको 40 साल का टाइम तो मिल ही जाता है। और अभी कोई 35 में चालू करेगा तो 65 होते होते उसको 30 साल ही रह जाएगा, उसके पास टाइम कम हो गया 10 साल का। तो 10 साल का टाइम कम होने से अभी देखिए, लुक एट द कॉर्पस दे हैव रिसीव्ड। बंदा नंबर 1 जो 25 साल से चालू किया था, he invested a total sum of rupees 24 lakhs, 24 lakhs टोटल। महीने में 5000 तो मंथली सालाना आ गया आपका 60,000। तो 40 इयर्स में 60-40 24 lakhs उसका टोटल इन्वेस्टमेंट है, which comes to approximately 5.14 CR at his 65 years of age. 5.15 CR at his 65 years of age. 5.14 CR, ठीक है, कितना गुना हो गया?
अभी इसके तरफ बंदा नंबर 2 की तरफ देखते हैं, जिसको अकल देर से आया था। उन्होंने 36 लाख इन्वेस्टमेंट किए क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज्यादा था। मंथली 10,000 करके सालाना 1,20,000, तो 30 साल में 36 लाख उसका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जबकि इसका 24 लाख था। इसका हो गया 36 लाख क्योंकि उसको टाइम कम मिला था, उसको रिकवर भी करना था, इसलिए वो ज्यादा इन्वेस्ट किया। तो इससे 12 लाख ही इन्वेस्टेड, बंदा नंबर 2 इन्वेस्टेड 12 lakhs मोर देन बंदा नंबर 1, बट क्योंकि टाइम उसको कम मिला था मार्केट में इन्वेस्टेड रहने का, तो उसका कॉर्पस हो गया 2.96 सीआर, 2.96 सीआर। जबकि ये 10 साल ज्यादा इन्वेस्टेड रहे मार्केट में, 12 लाख रुपए कम इन्वेस्टमेंट किए और वो 5 सीआर लेके जा रहा है। 65 में उसका रिटायरमेंट पर्पस हो गया 5.14 सीआर और इसके 65 में 2.96 सीआर, जबकि 12 लाख रुपए ज्यादा इन्वेस्टमेंट किए थे। तो कैन एनीबडी टेल मी और कैन एनीबडी अंडरस्टैंड कि व्हाई दिस, जबकि ये 24 लाख इन्वेस्ट करके उसको 5.1 सीआर मिल रहा है और जबकि ये 36 लाख इन्वेस्ट करके 2.96 सीआर का इन्वेस्टमेंट टोटल कॉर्पस लेके जा रहा है। यहां पे एक चीज मैं बता देना चाहूंगा, इन बोथ द केसेस फंड्स आर सेम एंड सीएजीआर इज आल्सो सेम। रेट ऑफ रिटर्न, जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, इन बोथ द केसेस दे आर सेम, और मैं मान के चलता हूं कि भाई दोनों एक ही कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट किया था, चलो एक ही टाइप के एसेट क्लास में इन्वेस्ट किया था, बट फिर भी ये डिफरेंस क्यों? जबकि ये तो ज्यादा इन्वेस्ट किया फिर भी इसको कम मिला, और जबकि ये तो कम इन्वेस्ट किया फिर भी इसको ज्यादा मिला। मेन डिफरेंशिएटर इज टाइम। वो महाभारत के काल में जब बी आर चोपड़ा वाला महाभारत होता था, मैं समय हूं, ठीक है, ये वो समय है जो कि कंपाउंडिंग को ज्यादा मजबूती देता है। देखिए, टाइम प्लस कंपाउंडिंग इज इक्वल्स टू वेल्थ, मतलब यहां पे जो फैक्टर आ गया 10 साल, ये 40 साल इन्वेस्टेड रहा तो इसको 10 साल ज्यादा मिल गया कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलने के लिए, तो दैट इज द डिफरेंशिएटर। ठीक है, होप इट इज क्लियर नाउ। चलिए बढ़ते हैं आगे। Always remember, your salary can make you comfortable, but financial literacy can make you free. At Cash Reach Surajit, we are not just learning how to invest, we are learning how to think about money. Because when your knowledge grows, your confidence grows. And when your confidence grows, your wealth has the opportunity to grow too. With this, we are winding up the first ever episode of Cash Reach Surajit. If you found this video valuable, please like, subscribe, and share it with someone who deserves financial confidence. In our next episode, we will explore why rich people continue to grow wealth while many hardworking people struggle financially. Until then, keep learning, keep growing, and remember, we do not sell investment, we build financial confidence.